Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 15. The name of the chapter is The All American Slurp. The meaning of slurp is drinking something with noise, making noise. कुछ आवाज करते हुए पीना. Let's start. Culture comprises the general characteristics of a particular group of people. Now, read the story about cultural differences between the Chinese and the Americans. In this chapter, we are going to read some characteristics based on culture of some people of China and America. The first time our family was invited out to dinner in America, we disgraced ourselves while eating celery. We had emigrated to this country from China, and during our early days here, we had a hard time with American table manners. Here, our family means Chinese family, the person who belonged to China. यहाँ पर जो आर आ रहा है वो चाइना से रिलेटेड आ रहा है. जो चाइना के लोग हैं जो यहाँ शिफ्ट हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम दे वर इनवाइटेड आउट टू अ डिनर इन अमेरिका. When they shifted to America, they were invited at someone's house, and we disgraced ourselves while eating celery. And what is the meaning of disgraced? First, to behave badly in a way that make you feel ashamed, like they did something which ashamed them. And what they did, they felt ashamed while eating celery. Now, what is celery? A kind of green plant which look like spinach or coriander. एक ऐसा पत्ते वाली सब्जी होती है जिसे कच्ची खाई जाती है अमेरिका में. सो व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग सेलेरी दे फेल्ट अशेम्ड. We had emigrated to this country from China. From where they had emigrated? What is the meaning of emigrated? To leave your own country and to shift somewhere else. तो ये लोग कहाँ से शिफ्ट हुए हैं? ये लोग कहाँ से आए हैं? चाइना से. और कहाँ शिफ्ट हुए हैं? अमेरिका में. And during our early days here, we had a hard time with American table manners. And since they were shifted from China, they were completely China based people. So, in the starting, they were facing a lot of problems in table manners. What is the meaning of table manners? How to eat, how to behave while eating, what to eat, which things to be eaten. मतलब कि अमेरिका में कैसे खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, किस तरीके से खाया जाता है और क्या खाया जाता है. दीज ऑल वर टेबल मैनर्स. और इनको ये सब समझने में अभी प्रॉब्लम हो रही थी. इन चाइना वी नेवर एट सेलेरी रॉ और एनी अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल्स रॉ. चाइना में इन लोगों ने कभी भी जो सेलेरी है या कोई भी दूसरी वेजिटेबल को कच्चा नहीं खाया था. दे हैव नेवर ईटन दैट सेलेरी और एनी अदर green vegetable raw. We always had to disinfect the vegetables in boiling water first. What Chinese people used to do? First, they boil that particular vegetable with disinfectant, then they eat. When we were presented with our first relish tray, the raw celery caught us unprepared. The meaning of relish is luxurious, or you can say a tray containing sweet pickle or any appetizer. Now, what is appetizer? Appetizer is used to improve your digestion, which you are going to eat afterwards. आप जो चीज़ खाने वाले हैं उससे पहले आपको एपेटाइज़र दिया जाता है जिससे कि आपको वो चीज़ खाने में डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो. तो अब उनकी जो सैलरी थी वो दे वर नॉट प्रिपेयर टू ईट दैट सैलरी. सो दे थॉट दिस इज द इमेजिनेशन की जो सैलरी है and they were unprepared to eat the celery because it was the first time to eat raw celery क्योंकि ये उनका पहली बार था जब उन्हें कच्ची सब्जी खानी थी. We had been invited to dinner by our neighbors, the Gleasons. Who invited them? The Gleasons. Gleasons is surname of those Americans. So the Gleasons is used here. So who invited them? The Gleasons invited whom?
those Chinese people who had emigrated to this country. After arriving at house, we shook hands with our host and packed ourselves into a sofa. After reaching there at their house, they shook hands, they greeted them, and they directly moved to a sofa. उनके घर पहुंचने के बाद उन लोगों ने उन लोगों को ग्रीट किया, हाथ हाथ मिलाया, और उसके बाद वो सीधे सोफे पे जाकर बैठ गए. As our family of four sat stiffly in a row, my younger brother and I stole glances at our parents for a clue as to what to do next. अब they four were sitting on a single sofa. ये चारों के चारों एक ही सोफा पे सो रहे थे. So they were sitting very stiffly. Stiffly means in a manner that is not relaxed. मतलब वो रिलैक्स नहीं थे, बहुत एकदम कड़क से होकर सीधे सीधे चिपक कर बैठे थे. एंड माई यंगर ब्रदर मीन्स द पर्सन हु इज सेइंग दिस. एंड हु इज सेइंग दिस? लेंसी. Who is saying this? Lency, the writer, and of course the daughter of these two. So Lency and her brother, they both were looking to their parents. वो दोनों अपने मम्मी पापा को देख रहे थे. टू नो दैट वॉट दे हैव टू डू नेक्स्ट, कि वो जानना चाहते थे कि अब आगे उन्हें क्या करना है. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. मिसेस ग्लीसन ऑफर्ड द रेलिश ट्रे टू मदर. मिसेस ग्लीसन ऑफर्ड दैट रेलिश ट्रे, दैट एपेटाइजर, टू मदर. उन्होंने जो एपेटाइजर था वो मम्मी को दिया. द ट्रे लुक्ड प्रिटी with its tiny red radishes, curly sticks of carrots, and long, slender stalks of pale green celery. What was in that tray? Radishes, carrots, and pale green celeries. ये सारी के सारी वेजिटेबल्स उसमें रखी हुई थी ट्रे में, बहुत डेकोरेटिव तरीके से. डू ट्राई सम ऑफ द सेलरी. अब वो बोल रही हैं मिसेस ग्लेसन कि प्लीज़ ट्राई सम ऑफ द सेलरी, कि प्लीज़ सेलरी को आप लीजिए. मिसेस लिन, शी सेड. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेंसीज मदर? मिसेस लिन. इट इज़ फ्रॉम अ लोकल फार्मर एंड इट्स स्वीट. अब वो बता रही हैं कि ये जो सेलरी है वो कहाँ से लेकर आई हैं? अपने लोकल फार्मर से, मतलब पास में ही उनके. जैसे कि हम अपने घर में जो सब्जियां लाते हैं वो हम अच्छे से हरी सब्जियों को लेकर आते हैं, जो हमारे जान पहचान के होते हैं उनसे लेते हैं. वैसे ही ये भी अपने किसी लोकल फार्मर से लेकर आए हैं, और ये बता रहे हैं कि जो सेलरी है वो अच्छी है, मीठी है. Mother picked up one of the green stalks and father followed suit. Then I picked up a stalk and my brother did too. So there we sat, each with a stalk of celery in our right hand. अब मेरी मम्मा ने उनमें से एक ग्रीन स्टॉक यानी कि एक सेलरी का स्टॉक उठाया. मेरे पापा ने उन्हें फॉलो किया, उन्होंने भी यही किया. फिर मैंने भी सेम चीज़ की, और देन मेरे भाई ने भी मुझे फॉलो किया. And we all were sitting there with a stalk of celery in our hand. अब हमारे पास एक एक सेलरी थी हमारे हाथ में. मिसेस ग्लेसन kept smiling. जो मिसेस ग्लेसन थी, जो अमेरिकन थी, वो जिन्होंने इनवाइट किया था, वो कंटिन्यूसली हंस रही थी, स्माइल कर रही थी. Would you like to try some of the dip, Mrs. Lynn? It's my own recipe, sour cream and onion flakes with a dash of Tabasco sauce. Now Mrs. Gleason is asking for a dip. जैसे हम नाचोस खाते हैं मेयोनीज के साथ, मेयोनीज इज अ डिप, तो वैसे ही वो बोल रही हैं कि क्या आप सिलेरी को डिप के साथ खाएंगे. एंड सिलेरी के साथ जो डिप मैंने बनाई है, दैट डिप इज़ माई रेसिपी. मैंने अपनी ओन रेसिपी से बनाई है, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ सोर क्रीम, अनियन फ्लेक्स और टबेस्को सॉस. व्हाट इज़ टबेस्को सॉस? मेड ऑफ कैप्सिकम एंड पेपर, शिमला मिर्च और पेपर से बनी हुई सॉस. Most Chinese don't care for dairy products, and in those days I wasn't enough ready to drink fresh milk. Sour cream sounded perfectly revolting. Our family shook our heads in unison. एंड नाउ ये चाइनीज़ का जो ट्रेंड बता रहे हैं हम, जो ये लेंसी है ये चाइनीज़ का ट्रेंड बता रही है कि जो चाइनीज़ होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते. दे डू नॉट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स.
तो इसी वजह से स्टार्टिंग के डेज में जो लेंसी है उसे दूध पीना भी पसंद नहीं था। और जो ये सोर क्रीम की बात हुई तो ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर भी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने एक साथ सर हिलाया। इन यूनाइसन मीन्स टुगेदर at the same time. Mrs. Gleason on went off with the relish tray to the other guest, and we carefully watched to see what they did. Everyone seemed to eat the raw vegetables quite happily. अब जो मिसेस ग्लेसन हैं वो रेलिश ट्रे को दूसरे लोगों के पास भी लेकर गई और उन्होंने जो चाइनीज फैमिली जो आई है दे फोर वर लुकिंग एवरीवन वेरी केयरफुली। वो सबको बहुत ध्यान से देख रहे थे। एंड वॉट दे सॉ उन्होंने क्या देखा कि एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर ईटिंग सेलेरी और एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी सीइंग सेलेरी। सब लोग बहुत खुश थे सेलेरी को देखकर, कच्ची जो सब्जियां थी उन सबको देखकर, उनको खाकर। दे ऑल वर वेरी हैप्पी। मदर टुक अ बाइट ऑफ हर सेलरी। मेरी मम्मी ने सेलरी में से एक बाइट खाया। क्रंच, जो आवाज आई वो क्रंच थी। इट्स नॉट बैड शी विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा। इट्स नॉट बैड, ये उतनी भी बुरी नहीं है। फादर टुक अ बिट ऑफ हिज सेलरी, मेरे पापा ने भी थोड़ा सा बाइट खाया। क्रंच, यस इट इज गुड, मेरे पापा ने भी कहा यस इट इज गुड। ही सेड लुकिंग सरप्राइज्ड, और वो थोड़े सरप्राइज्ड थे। मतलब दे डिडंट एक्सपेक्ट, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सैलरी इतनी अच्छी होगी। आई टुक अ बाइट एंड देन माई ब्रदर, और फिर मैंने भी एक बाइट खाया और फिर मेरे भाई ने भी खाया। क्रंच क्रंच एंड द नॉइस वॉज, द साउंड वॉज लाइक दिस। इट वॉज मोर देन गुड, और हम दोनों को ये अच्छे से भी ज़्यादा अच्छी लगी। इट वॉज डिलीशियस, मतलब ये बहुत टेस्टी थी। रॉ सेलेरी हैज़ अ स्लाइट स्पार्कल, अ जिंगी टेस्ट दैट यू डू नॉट गेट इन कुक्ड सेलेरी। नाउ वॉट वी फेल्ट कि जो कुक्ड सेलेरी यानी पकी हुई सेलेरी में जो टेस्ट होता है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट हमें इसका रॉ सेलेरी का लगा। When Mrs. Gleason came around with the relish tray, we each took another stalk of celery except my brother, he took two. And when Mrs. Gleason came next time, second time, we took one more stalk of celery. जब Mrs. Gleason हमारे पास दोबारा आई तो हमने एक और स्टॉक लिया, और लेकिन मेरे भाई ने दो स्टॉक लिए। मीन्स उसको ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई। There was only one problem. Long strings ran through the length of the stalk and they got caught in my teeth. When I help my mother in kitchen, I always pull the strings out before slicing celery. And now this Lency, what problem she was facing? उसको क्या प्रॉब्लम लग रही थी कि जो लंबी लंबी डंडियां थी वो उसके टीथ में, दांतों में अटक रही थी, और इसी वजह से शी वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम टू ईट that now. But and what she is saying कि जब when she used to help her mother, जब वो अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करती थी तब while cooking that celery she used to cut the long stalks। वो क्या करती थी कि वो किचन में जब वो काटती थी उसको कुक करने से पहले वो उसकी कटिंग कर देती थी, उसको सही से काट देती थी जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए। आई पुल्ड द स्ट्रिंग्स आउट ऑफ माई स्टॉक, और मैंने अपने स्टॉक में से साइड से स्ट्रिंग्स निकाल दी, डंडियाँ निकाल दी। जिप जिप, माई ब्रदर फॉलोड सूट, और मेरे भाई ने भी सेम वैसा ही किया। जिप। टू माई लेफ्ट माई पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन स्टॉक्स। जिप, और वो भी यही सेम कर रहे थे, मेकिंग दिस साउंड। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। Suddenly, I realized that there was a dead silence except for our zipping. Or suddenly, I realized that our sound was so loud and everyone was very silent. वहाँ पे सब लोग बहुत चुप थे और हमारा जो साउंड आ रहा था वो सबको सुनाई दे रहा था। Looking up, I saw that the eyes of everyone in the room were on our family. And what I noticed that everyone in the room, every guest was looking at us. सब कोई हमारे तरफ ही देख रहे थे। Mr. and Mrs. Gleason, their daughter Meg, who was my friend. Meg is Lency's friend, and
she is an American, Meg is an American, Lency is a Chinese girl. And their neighbors, the Badals, they were all staring at us as we busily pulled the string of our celery. And these all people, of daughter of Gleason Meg, and other neighbors were look continuously, and other guests were continuously looking at a Chinese family, means Lency's family, because they were busy in pulling the strings of the celery and that they were making sound. दैट वॉजेंट द एंड ऑफ इट, अभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, मतलब ये सारी चीज़ें को मेंशन क्यों किया जा रहा है, इफ़ यू गेट इट, कि ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे चाइनीज़ लोगों को, जो ये चाइना से शिफ्ट हुए थे, इन्हें कैसे अमेरिका के लोगों के साथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे कैसे चीज़ों को नोटिस किया जा रहा था, बिकॉज दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ एंड अमेरिकन्स, ये इसीलिए बताया गया है. दैट वॉजन द एंड ऑफ इट, मतलब अभी हमारी बेइज्जती होना ख़त्म नहीं हुआ था, अभी हमारी और इंसल्ट होनी बची थी. मिसेस ग्लीसन अनाउंस्ड दैट डिनर वॉज सर्व्ड एंड इन्वाइटेड अस टू द डाइनिंग टेबल. अब मिसेस ग्लीसन ने कहा कि डिनर सर्व हो चुका है एंड नाउ जॉइन अस ऑन डाइनिंग टेबल, कि अब हमें डाइनिंग टेबल पे ज्वाइन कीजिए. इट वॉज लेविशली कवर्ड विथ प्लेटर्स ऑफ फूड. अब जो डाइनिंग टेबल थी वो बहुत अलग अलग फूड प्लेटर्स से कवर्ड थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत डेकोरेटिव लग रही थी. बट वी कुडंट सी एनी चेयर्स अराउंड द टेबल, पर हमें टेबल के आसपास तो कोई चेयर ही नहीं दिख रही थी. सो वी हेल्पफुली कैरीड ओवर सम डाइनिंग चेयर्स एंड सेट डाउन. और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, चेयर्स उठाई और हम वहाँ ले गए और उन पे बैठ गए. ऑल द अदर गेस्ट जस्ट स्टूड देयर, बट एवरी वन वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर. बाकी सब तो वहाँ खड़े थे. मिसेस ग्लीसन बेंट डाउन एंड विस्पर्ड टू अस. अब मिसेस ग्लीसन मुझ नीचे झुकी और मेरे कान में आकर उन्होंने बोला, दिस इज़ अ बफे डिनर. दिस इज़ अ बफे डिनर. बफे डिनर मीन्स खड़े होकर हाथ में प्लेट लेकर खाना खाना. सो दिस वॉज बफे डिनर. यू हेल्प योर सेल्व्स टू सम फूड एंड ईट इट इन द लिविंग रूम, कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपना अपना खाना लीजिए और आप लिविंग रूम में खा लीजिए. आवर फैमिली बीट अ रिट्रीट back to the sofa as if chased by enemy soldiers. What is the meaning of beat a retreat? To go away or go back quickly. अब हमारी फैमिली, मतलब हम चारों लोग फटाफट से ऐसे सोफा की तरफ भागे कि किसी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया हो. For the rest of the evening, too mortified to go back to the dining table, I nursed a bit of potato salad on my plate. अब क्या हुआ, अब पूरी इवनिंग तक हम लोग इतना इंसल्टेड फील कर रहे थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोटिफाइड? मोटिफाइड मीन्स इंसल्टेड. वो लोग इतना इंसल्टेड फील कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए कि उसने क्या किया, उसने अपने प्लेट में जो पोटैटो सैलेड था वही अपने लिए थोड़ा सा ले लिया. नेक्स्ट डे Meg and I got on the school bus together. Who is Meg? You remember, Meg is American girl who invited Mrs. Gleason's daughter. Next day Meg and I got on the school bus together. अगले ही दिन हम स्कूल बस में साथ में चढ़े. I wasn't sure how she would feel about me after the spectacle our family made at the party. नाउ आई वॉज थिंकिंग कि हमारी जो इंसल्ट हुई है लास्ट नाइट पार्टी में, मैग उस पर कैसे रिएक्ट करेगी. एज यूजल, होप you and your folks got enough to eat last night. You certainly didn't take very much. Mom never tries to figure out how much food to prepare. She just puts everything on the table and hopes for the best. And now Meg is asking. Meg लेंसी से पूछती है कि होप यू गॉट योर इनफ फूड लास्ट नाइट, कि आपने होप आपने अच्छे से अपना खाना खाया, क्योंकि व्हेन आई नोटिस्ड आप लोगों ने बहुत कम खाया, आपने तो लिया ही नहीं था.
और मेरी मम्मी हैं वो कभी इतना ये नहीं सोचती कि कितना खाना कैसे बनाना है। वो जो भी होता है घर में जो भी बनाती हैं वो सारा का सारा टेबल पे एक साथ रख देती हैं एंड देन शी होप्स फॉर द बेस्ट। और फिर वो बस कोशिश करती हैं कि सब कुछ अच्छा हो। आई बिगिन टू रिलैक्स। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा शांति आई, मैं रिलैक्स फील करना शुरू किया। The Gleasons' dinner party wasn't so different from a Chinese meal after all. हाँ, ग्लीसन्स की डिनर पार्टी इतनी भी ज़्यादा अलग नहीं थी हमारी चाइनीज मील से। Meg was the first friend I had made after we came to America. And after coming to America, Meg was my first friend. Meg किसकी पहली फ्रेंड थी? लेंसी की। I eventually got acquainted with a few other kids in school, but Meg was still the only real friend I had. हाँ, धीरे धीरे और भी फ्रेंड्स मेरे बनने लगे, मैं लोगों को जानने लगी, बट स्टिल मैग वॉज माई रियल फ्रेंड। लेकिन फिर भी मैग ही मेरी अच्छी और सच्ची दोस्त थी। माई ब्रदर डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स मेकिंग फ्रेंड्स। और यू नो माई ब्रदर, मेरा भाई को तो कभी किसी से कोई दोस्त बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। He spent all his time with some boys who were teaching him baseball, and in no time he could speak English much faster than I could. Not better, but faster. And इसी वजह से उसके बहुत सारे दोस्त बने थे जो कि उसे बेसबॉल भी सिखाते थे स्कूल में। और इन नो टाइम ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अब वो चाइना से आए थे एंड दे नो चाइनीज़ लैंग्वेज, तो इसीलिए उन्हें इंग्लिश सीखने में टाइम लग रहा था। सो इसी वजह से जो लड़का था, जो भाई था लेंसी का, वो जल्दी इंग्लिश बोलना सीख गया बिकॉज ही हैड मैनी फ्रेंड्स। तो इसी वजह से वो जल्दी इंग्लिश बोलना सीख गया, फास्टर। वो जल्दी जल्दी तेज तेज इंग्लिश बोलता था। नॉट बेटर, अच्छी इंग्लिश नहीं, लेकिन फास्ट इंग्लिश। आई वरिड मोर about making mistakes and I spoke carefully, making sure I could say everything right before opening my mouth. And I was very conscious while speaking English because I wanted to speak very clearly without mistake. और मैं कॉन्शियस थी कि मेरे मुंह से जो भी निकले वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। एट लीस्ट आई हैड अ बेटर एक्सेंट देन माई पेरेंट्स। और वैसे भी मेरा मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छा एक्सेंट है। एक्सेंट मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग। हु नेवर रियली गॉट रिड ऑफ देयर चाइनीज़ एक्सेंट इवन ईयर्स लेटर। और मेरे मम्मी पापा का एक्सेंट तो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइनीज़ से मिलता जुलता है। इसका मतलब वो अभी तक अपना चाइना का एक्सेंट भूल नहीं पाए हैं। Father's approach to English was a scientific one. Since Chinese verbs have no tense, जैसे कि चाइना की जो verbs होती हैं उनमें कोई tense नहीं होते। He was fascinated by the way English verbs changed form according to whether they were in the present, past imperfect, perfect, pluperfect, future or future perfect tense. He was always making diagrams of verbs looking for opportunities to show off his mastery. I shall have finished my project by Monday, he would say smugly. अब वो क्या करते कि जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे में से मेरे जो फादर थे, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई फादर टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इन चाइना देयर वर नो टेंसेज और यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में टेंसेज हैं। सो ही वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड विद दीज टेंसेज, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आते थे कि ये कैसे और कब चेंज हो जाते हैं। एंड ही ऑलवेज ट्राइड टू मैनेज लर्निंग टेंसेज। और उन्होंने हमेशा ट्राई किया कि उनको जल्दी से जल्दी टेंसेज लर्न करने हैं। तो वो क्या करते, वो चार्ट बनाते, डायग्राम्स बनाते वर्ब्स का, ताकि वो जल्दी से जल्दी सीख पाएँ। और वो थोड़े ही ईगोइस्टिक मैनर में, स्मगली मीन्स इन अ ईगोस्टिक मैनर, कि वो एक थोड़ा सा घमंड के रूप में बोलते थे कि सी आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, कि मैं अपना काम मंडे तक ख़त्म कर लूँगा, मेरा काम मंडे तक ख़त्म हो चुका होगा। In this video, I'll teach you this chapter till here only. Kindly take it here. We will continue this chapter in tomorrow's video. Till then, watch this video carefully and try to find out extra questions from this chapter.